Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear teachers, Assalamu alaikum. I am Musa Ali, lecturer, Department of Languages and Cultural Studies, University of Baltistan, Skardu. I hope you people are well and enjoying the training sessions here in this Words Group app. As you know that we are going to discuss something about the English language skills. So, as the instruction given by the group admin, I have selected English tenses for the lectures, and inshallah you will enjoy, and I am waiting of your feedback regarding the lectures. So today inshallah we will discuss something about the English tenses. First we introduce what tenses are themselves. So in grammar, tense is a category that expresses time reference with reference to the moment of speaking. Tense are usually manifested by the use of specific forms of verbs, particularly in their conjugation patterns. The main tenses found in many languages, including the past tense, present, and future. Tense is a verb form that shows the time of an action, event, or state by a change in its form and are the use of a helping verb. Examples: walk, see, will call, is standing, have gone, looked. So here you can see that in a very simple language you can say that in grammar tense is a category. Tense is a category that expresses time reference with reference to the moment of speaking. For example, we can discuss something about some event or activity or state of being in the past. We can also discuss something about in the present, and we might discuss something about in the future. If we discuss this in Urdu, we can say that tense जो है किसी भी लैंग्वेज की वो कैटेगरी होता है जिसमें आप जिस ज़माने में रह के बात कर रहे हैं उसके रेफरेंस से किसी काम का हवाला देना कि वो काम कब हुई, माजी में हुई, आज हाल में हो रहा है या मुस्तकबिल में इसको होना है. तो टेंस जो हमें ये बताता है कि कोई काम कब हुआ, कब हो रहे हैं और कब होंगे. इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी हम इंसानी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं, व्हेन एवर वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, सो ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर languages of the creature like the honey bee and some other creature. This is the characteristic of human being that we discuss about the time reference. हम टाइम रेफरेंस से बात करते हैं कि काम कब जो है हैपन हुआ. तो यहाँ पर मजीद आगे कहते हैं टेंस आर यूजुअली मैनिफेस्टेड बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब, particularly in their conjugation pattern. Tense are usually manifested by the use of specific form of verbs. Mean, if something happened in the past, we used the past tense. For example, in past simple tense, as you know that we use the second form of the verb because this shows that something happened in the past. अगर जो है ना किसी माजी में या पास्ट में किसी काम के जारी होने का जिक्र करें तो वहाँ आप वाज और वर के साथ जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या प्रोग्रेसिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. अगर पास्ट में किसी काम के मुकम्मल होने का जिक्र किया जाए तो इसमें हम
हेड के साथ जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ हैड। इसमें यह होता है कि एक काम किसी और काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका हो। तो यहाँ पर आपके जो कंजुगेशन पैटर्न होगा वो ये होगा कि आप जो है क्या करेंगे, आप जो है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से पास्ट में जो है अगर आप जो है किसी काम के ड्यूरेशन को जाहिर करना चाह रहे हो तो आप हेड के साथ बीन लगाएंगे और वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट में भी यही है। प्रेजेंट सिंपल में आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जो है इस एम आर के साथ जो है वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म या जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्रेजेंट जो है परफेक्ट का जिक्र कर रहे हैं यानी ज़माना या हाल में किसी काम के जो है मुकम्मल होने का जिक्र करें तो आप जो है इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी तरह से इन प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा ज़माने में किसी काम के ड्यूरेशन को आप जाहिर करना चाहें तो फिर आप जो है हैज़ हैव के साथ बीन और इसके बाद जो है वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी प्रोग्रेसिव या आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फ्यूचर में आप शैल विल के साथ ये तमाम चीज़ें रिपीट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि दीज आर यूजुअली मैनिफेस्टेड बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स पर्टिकुलरली इन देयर कंजुगेशन पैटर्न। कंजुगेशन पैटर्न मीन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये चेंज होता रहता है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बेसिकली देयर आर 5 फॉर्म। किसी भी जो है लैंग्वेज के ख़ास तौर पर इंग्लिश के जो है वो आपके 5 फॉर्म्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके से कंजुगेट कर रहा होता है, बदल रहा होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम रेफरेंस। तो द मेन टेंसेस फाउंड इन मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर हम टेंस को मेन कैटेगरी के अंदर जो है डिवाइड करें तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, यानी गुजरा हुआ ज़माना, मौजूदा ज़माना और आने वाला ज़माना। तो आगे मज़ीद अगर आप देखें, टेंस इज़ वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और स्टेट बाय ए चेंज इन इट्स फॉर्म एंड आर द यूज़ ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया पहले वाले में। तो यहाँ पर क्या होता है, टेंस इज़ बेसिकली द वर्ब फॉर्म्स, वर्ब के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं जिसको आप अकॉर्डिंग टू द टाइम रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं अपने लैंग्वेज एक्सप्रेशन के दौरान में। अब यहाँ पर देखो, टेंस इज़ वर्ब फॉर्म, टेंस और कुछ नहीं होता, वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं जिसको हम अकॉर्डिंग टू द टाइम रेफरेंस की कोई काम या एक्शन या इवेंट या एक्टिविटी या जो है ना स्टेट जो है वो कब जो है वक़ूअ पज़ीर हुआ बाय चेंज इट्स फॉर्म। अब जहाँ जहाँ आप टाइम को रेफरेंस करके इन फॉर्म को इस्तेमाल करना चाहेंगे वहाँ पर वो कंजुगेट करेंगे, चेंज होते जाएंगे। प्रेजेंट का अलग फॉर्म इस्तेमाल होगा, पास्ट का अलग फॉर्म इस्तेमाल होंगे और फ्यूचर में अलग फॉर्म इस्तेमाल होंगे। और इसके अंदर सब कैटेगरीज़ के अंदर इन फॉर्म्स को आप मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि आप उस काम के सही वक्त को जो है मेंशन करें एक्सप्रेशन के दौरान कि वो काम कब जो है वक़ूअ पज़ीर हुई है या वो काम कब मुकम्मल हुआ है, जारी है या जो है ना होता है या हुआ है। इन चीज़ों को आप अकॉर्डिंग टू टेंस या टाइम रेफरेंस आप क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन वर्ब के इस्तेमाल से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया एग्जांपल वर्क है, सी है, विल कॉल है, स्टैंडिंग है, हैव गॉन है, लुक्ड है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो आप को नज़र आ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये आप इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर टाइम रेफरेंस इन विच द एक्शन और एक्टिविटी और द इवेंट हैपेंड। अगर हम मज़ीद आगे जाएँ तो टेंस को अगर हम सिंपली कैटेगराइज करें तो देर आर 3 मेन कैटेगरी ऑफ टेंसेस in the most of the language of the world, like you can see present tense, the past tense and future tense। तो आपको नज़र आए कि ये present tense है, past tense है और future tense है। और ज़्यादातर यानी there are more than 6,500 languages। इन तमाम languages के अंदर most of the languages ऐसे हैं जिनमें ये 3 जो है ना verb forms या verbs categories पाया जाता है जिसको हम टेंसेस कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। लेट्स डिस्कस समथिंग मोर। अब इफ वी कैटेगराइज
for the present tense, there are 4 subcategories of present tense. As you can see in the screen, that present tense can be divided into simple indefinite tense, present continuous or present progressive tense, present perfect simple tense, and present perfect continuous tense. These are the tenses which are categorized in the present tense. These are the subcategory of present tense. So first we discuss something about the simple present tense. What is simple present tense? Here the introduction. The tense shows an action, activity or event which has happened or existed in the past, is happening or existing in the present, and probably will happen or exist in the future. So with this definition we might feel some confusion that this tense shows an action or activity or event which has happened or existed in the past, is happening or existing in the present, and probably will happen or exist in the future. So देखने में ये डेफिनेशन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि कोई काम जो माजी में होता रहा और अब भी हो रहा है और मुस्तकबिल में भी गालिबन होंगे, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे एक्टिविटी या इवेंट या एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करेगा जो होता रहा है, अब भी होता है या हो रहा है और मुस्तकबिल में भी गालिबन होते ही रहेंगे। तो ऐसे तमाम एक्टिविटी, इवेंट और एक्शंस और साथ में स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो बात यूँ हुआ, कोई चीज़ परमानेंटली चल रहा हो, परमानेंटली मीन पहले से चल रहा हो, अब भी चलता है और गालिबन मुस्तकबिल में भी चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। इट्स मीन it happened yesterday, it's happening nowadays, mean it's happening today, and it will happen in the future as well. सूरज जो है कल भी तुलू हुआ, आज तुलू होता है और गालिबन कल भी होंगे। तो ये जो है टेंस ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए होता है जो मुस्तकिल होता रहता है, पहले भी हुआ, अब भी होता है और मुस्तकबिल में भी होंगे। आगे कहते हैं, इट इज़ द वर्ब टेंस विच इज़ यूज्ड टू शो रिपीटिशन, हैबिट और जनरलाइजेशन एंड फॉर द एक्शन हैपनिंग रेगुलरली और परमानेंटली। इट्स मीन इट्स द वर्ब टेंस विच इज़ यूज्ड टू शो रिपीटिशन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, रिपीटिशन ऑफ द राइजिंग ऑफ सन अगेन एंड अगेन। और यू कैन अंडरस्टैंड दिस with another example, like the earth revolves around the sun. You can see, यानी more than 2 billion years या 4 billion years, ये जो है ना 4.65 billion years पहले ये जो है दुनिया वजूद में आया था, यानी 4 अरब 65 करोड़ साल पहले। तो उस वक़्त से जो है क्या कर रहे हैं, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है और या भी घूम रहा है और मुस्तकबिल में भी घूमते रहेंगे। तो दिस इज़ अ रिपीटिशन एंड दिस इज़ द एक्शन हैपनिंग रेगुलरली एंड परमानेंटली। तो हम इस जनरल फैक्ट को या यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करते हैं तो किस में करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसी तरह से हनी इज स्वीट, फॉर एग्जाम्पल, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, एज यू नो दैट दिस अ फैक्ट, इट वॉज एग्जिस्टेड, मीन कल भी हनी स्वीट था, आज भी हनी स्वीट है और कल भी जो है ना हनी यानी शहद स्वीट ही रहेंगे। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट्स or this sort of actions and state of being, we use the present simple tense. It also denotes a stative or eternal true action as well. Eternal true,
mean the sun the sun the sun is a star. This is eternal. It is eternal fact. स्टार क्या है? स्टार है, सूरज एक स्टार है, ये एक फैक्ट है. तो हम क्या कहेंगे? द सन इज स्टार. दिस इज स्टेटिव और इटर्नल ट्रू. और ये है कि एक्शन एक हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, दिस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, होता है. दिस इटर्नल फैक्ट. This tense used to refer an action, event, activity or condition as well. ये एक्शन को, इवेंट और कंडीशन को भी जाहिर करता है. तो ये क्या है? एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने ये समझा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे तमाम एक्टिविटी, ऐसे तमाम एक्शन, इवेंट, स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करते हैं जो परमानेंटली ट्रू है, या रेगुलरली वो होता है, रिपीटेडली वो होता है. ये कोई हैबिट हो सकता है या जनरलाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहे हैं और गालिबन मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, एक्शंस, इवेंट एंड स्टेट ऑफ बीइंग, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर हम मज़ीद इसके जो है यूजेस के हवाले से डिस्कस करें, इफ़ वी डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस, यू कैन सी हियर फॉर समथिंग विच इज़ परमानेंटली ट्रू, एज वी डिस्कस अर्लियर. फॉर समथिंग विच इज़ परमानेंटली ट्रू मीन्स आई कम फ्रॉम फ्रांस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम फ्रॉम फ्रांस, आई बिलोंग टू फ्रॉम, आई यूज दिस, आई कम फ्रॉम फ्रांस. आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम स्कर्डू, I come from Khaplu, I come from Gultari, I come from Randu or whatsoever. So if you belong to Randu, if you belong to Khaplu, if you belong to France, if you belong to anywhere, and you say that I come from France or some like that, it's mean this is a permanently true thing, and this should be expressed in present simple tense. We live in London, we live in Skardu, we live in Karachi, we live in Islamabad, whatsoever. So this is also a permanently true. So these sort of activities must be shown in the present simple tense. Like if we see the second example for repeated action or habit. For example, I get up at 6 o'clock every day. ये habit or repeated action must be shown in the present simple tense. जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब आप present simple को इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके रिपीटेड एक्शन है या हैबिट है या हैबिचुअल एक्शन है, ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है. जैसे कि आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे, मैं रोज़ाना जो है 6 बजे जागता हूँ, यह रिपीटेड एक्शन है, या इसको हम डेली रूटीन भी कहते हैं, डेली रूटीन. व्हाट टाइम डू यू लीव वर्क, आप कब वक्त, आप किस वक्त काम पे जाते हो. तो यहाँ पर भी जो है ना आप देखो, ये भी एक आपका क्या है, हैबिट, रिपीटेड एक्शन या हैबिट है. I go to school daily. I don't see them very often. These are all some examples which shows the repeated action or habitual action or habit or daily routine. So these sort of activities or action or event must be presented in present simple or present indefinite tense. इसी तरह से आप कहते हैं कि रोज़ाना मैं सुबह को चाय पीता हूँ. I take tea अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे और डेली. तो ये जो है आपकी क्या है, रिपीटेड एक्शन या आपकी हैबिट है. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन एंड डेली रूटीन, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस. अगर आप नेक्स्ट पे आ जाएं तो क्या है, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल फैक्ट्स. सो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल फैक्ट्स. जैसे कि यहां पर क्या क्या है, द अर्थ, द सन, ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन rises in the east, the sun rises in the east. सूरज
मशरिक से तुलू होता है. दिस इज जनरल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ. हनी इज स्वीट, शहद मीठा है. दिस इज जनरल फैक्ट. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सूरज ज़मीन सूरज की गिर्द घूमती है. 2 and 2 make 4, दो और दो मिलके 4 बनता है. तो these are the universal truth or these are the general fact, and all of the general facts and all of the universal truth must be shown or expressed in the present simple tense. इसको किस में करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है एक्सप्रेस करते हैं. अगर हम इसके अगले यूज पे आ जाएं तो क्या है? फॉर शोइंग टाइम शेड्यूल एंड टाइम टेबल. सो प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर शोइंग टाइम शेड्यूल और स्केड्यूल एंड टाइम टेबल. आप जब किसी टाइम टेबल को या टाइम स्केड्यूल को या शेड्यूल को जो है एक्सप्रेस करते हैं तो ये भी जो है ना आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफरेंट में करते हैं. फॉर एग्जांपल द बस गोज टू इस्लामाबाद एट 7:30. फॉर एग्जांपल यू आर इन अ बस स्टेशन. You are at a bus station and you see the timetable over there or the time schedule over there. You can see there that this bus goes to Islamabad at 7:30. तो आपको वहाँ पर उनके शेड्यूल या स्केड्यूल आपको नज़र आएंगे जिसमें एक बस जो है कब किस टाइम पे जो है इस्लामाबाद जाती है. तो वो टाइम शेड्यूल जहाँ जहाँ पर भी आएगा या टाइम स्केड्यूल जहाँ पर आएगा वो जो है आप किस में करेंगे? प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करेंगे. और जैसे टाइम टेबल है, आप टाइम टेबल क्लास का हो, एकेडमी का हो, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का हो, स्कूल का हो, जहाँ पर भी टाइम टेबल होता है वो भी जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस होता है. लाइक हियर, मिस्टर अली टीचेस अस इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड डेली. मिस्टर अली टीचेस अस इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड डेली. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाते हैं फर्स्ट पीरियड में डेली. तो ये आपकी स्कूल का या कॉलेज का एक टाइम टेबल है जो कि आप प्रेजेंट सिंपल में जो है क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं. थैंक यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड इंशाल्लाह यू विल गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड इफ़ देयर इज़ सम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लीज़ आइडेंटिफाई देम एंड देन प्लीज़ लेट मी नो so that those can be improved. Thank you very much.